حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی سارہ اور بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ ملک شام کی طرف ہجرت کی۔ ملک شام میں آپ کی ملاقات شام کے بادشاہ سے ہوئی۔ اس نے سیدہ سارہ علیہ السلام کی خدمت کے لیے ہاجرہ نامی ایک کنیز تحفے میں دی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ جب کافی مدت تک ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے خود ہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا، آپ ہاجرہ سے شادی کر لیں، شاید اللہ تعالیٰ ان سے کوئی اولاد عطا فرما دے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیگم کی خواہش کے احترام میں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام سے شادی کر لی۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں ایک حسین و جمیل بیٹا پیدا ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کا نام اسماعیل رکھا۔ جب اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اپنی بیوی اور بچے کو مکہ کی سرزمین پر چھوڑ آؤ۔ اس زمانے میں وہ جگہ بالکل بے آباد تھی، وہاں کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم مانا، اپنی بیوی اور بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مکہ پہنچے۔ ان دونوں کو اس مقام پر چھوڑا جہاں آج خانہ کعبہ ہے۔ ان کے پاس کچھ پانی اور چند کھجوریں تھی۔ اس حالت میں انہیں وہاں چھوڑ کر واپس روانہ ہونے لگے۔ اس وقت سیدہ ہاجرہ علیہ السلام ان کے پیچھے آ کر پوچھا، کیا آپ ہمیں اس بنجر سرزمین میں تنہا چھوڑنے جا رہے ہیں؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے کچھ اور قدم آپ کی طرف چلائے، پھر پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں پانی ہے، نہ کوئی نباتات، کوئی حیوان ہے، نہ کوئی انسان، آپ ہمیں کس لیے چھوڑ جا رہے ہیں؟ اس مرتبہ بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے بار بار یہ پوچھا لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ آخر انہوں نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے؟ اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا، ہاں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ تب سیدہ ہاجرہ علیہ السلام بولی، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اور واپس لوٹ گئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام روانہ ہو گئے۔ جب آپ گھاٹی کے پاس پہنچے جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو آپ نے ادھر رک کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، جہاں آج کعبہ ہے، اے میرے پروردگار، میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے۔ اے میرے پروردگار، یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں، بس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے، انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما کہ وہ تیرا شکر ادا کریں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نظروں سے اوجھل ہو گئے تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام اکیلے رہ گئے۔ وہاں سیدہ ہاجرہ علیہ السلام تھوڑے سے پانی اور کھجوروں پر گزارا کرتی رہی، خود پانی پیتی رہی اور بچے کو دودھ پلاتی رہی، یہاں تک کہ دونوں چیزیں یعنی پانی اور کھجوریں بالکل ختم ہو گئیں۔ اب بھوک اور پیاس کا مسئلہ پیدا ہو گیا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام اپنی بھوک پیاس برداشت کرتی رہیں، لیکن پیاس کی وجہ سے بیٹے کا حال ان سے دیکھا نہ گیا، وہ بے قرار ہو گئی۔ سیدنا اسماعیل علیہ السلام شدید پیاس کی وجہ سے زمین پر لوٹنے لگے۔ انہیں اس طرح لوٹتے دیکھ کر سیدہ ہاجرہ علیہ السلام نے پانی کی تلاش میں ادھر ادھر نظریں دوڑائیں، پانی نظر نہ آیا۔ کچھ دور دو پہاڑ نظر آئے، ان پر چڑھ کر پانی دیکھنے کا ارادہ کیا، سوچا شاید اس طرف پانی نظر آ جائے یا کوئی آتا جاتا دکھائی دے جائے۔ چنانچہ ایک پہاڑ کا رخ کیا، یہ دوسرے سے نزدیک تھا، آج اس کو ہم صفا پہاڑی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اس پر چڑھ گئے، چوٹی پر پہنچ کر چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہ آیا۔ اس سے اتر کر دوسرے پہاڑ کی طرف چل پڑی، ساتھ میں بچے کی طرف دیکھتی جاتی تھی۔ درمیان میں نشیبی جگہ تھی، وہاں پہنچی تو بچہ نظر نہ آیا، لہٰذا اس نشیبی جگہ کو دوڑ کر عبور کیا اور دوسرے پہاڑ یعنی مروہ پر چڑھ گئی۔ چاروں طرف دیکھا، پانی نظر نہ آیا۔ اب یہ مروہ سے اتر کر پھر صفا پر پہنچ گئی۔ اس طرح ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر آتی گئی۔ آپ نے 7 چکر لگا ڈالے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ رہتی دنیا تک حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے صفا اور مروہ کے 7 چکر مقرر فرما دیے۔ 7 چکر لگانے کے بعد انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے اس آواز کی طرف کان لگا دیا، آواز اب بھی سنائی دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا، تمہاری آواز میں نے سنی، اگر تم میری کوئی مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ آواز اسی طرف سے آتی تھی جہاں ان کا بچہ موجود تھا۔ وہاں انہوں نے ایک فرشتے کو دیکھا، فرشتے نے اپنا پیر زمین پر مارا، جس کے نتیجے میں وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ سیدہ ہاجرہ علیہ السلام دوڑ کر پہنچی، پانی دیکھ کر انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جلدی جلدی چلو، میں پانی لے کر بچے کو پلانے لگی، پھر خود پیا، پاس میں جو برتن تھے وہ بھی بھر لیے۔ پانی پیتے ہی ان کے تن میں زندگی کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ جو پانی پھوٹا تھا آج تک جاری ہے، ہم آج اس کو آب زمزم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی شان کس قدر نرالی تھی، یہ پانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک تحفہ تھا۔ پانی جب چاروں طرف پھیلنے لگا تو سیدہ ہاجرہ علیہ السلام گھبرا گئی۔ انہوں نے کہا، زمزم، اس کا مطلب ہے ٹھہر جا۔ پھر انہوں نے پانی کے ارد گرد پتھروں کی باڑ بنا دی تاکہ پانی وہاں جمع رہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ام اسماعیل پر رحم فرمائے، اگر انہوں نے زمزم کو ایسے چھوڑ دیا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا،
जब उस जगह पानी जमा हो गया तो परिंदे वहाँ पर मंडलाने लगे। उस जगह से कुछ दूर कबीला जुर्म का काफिला गुजर रहा था। उन्होंने परिंदों को मंडलाते देखा तो ख्याल किया इस जगह पानी है। उन्होंने एक आदमी को इस तरफ भेजा, तुम जरा जाकर देखो इस तरफ ये परिंदे क्यों उड़ रहे हैं। वो शख्स चट्टानों में से होता हुआ जमजम के चश्मे के पास आ गया और पानी को देखकर खुशी खुशी काफिले की तरफ किया। उन्हें पानी की खुशखबरी सुनाई। काफिला पानी के पास आ गया। वहाँ उन्होंने सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम को देखा। उनसे बोले, क्या आप हमें यहाँ ठहरने की इजाजत देती हैं? जब आपका बेटा जवान हो जाए तो हम इन्हें अपना सरदार बना लेंगे, और अगर जवान होकर ये हमें यहाँ से जाने का कहे तो हम चले जाएंगे। उन्होंने फरमाया, ठीक है, लेकिन इस शर्त के साथ पानी पर तुम्हारा कोई हक ना होगा। काफिले के लोग इजाजत मिलने पर बहुत ज्यादा खुश हुए। एक बहुत बड़ी नेमत उन्हें हासिल हुई थी। उन्होंने खुद भी पानी पिया, अपने जानवरों को भी पानी पिलाया, फिर वहाँ आबाद हो गए। उनमें से कुछ लोगों ने अपने घराने के बाकी लोगों को भी वहाँ बुला लिया। ये इसलिए हुआ था कि उस इलाके में पानी बहुत मुश्किल मिलता था और ज्यादा फासले पर मिलता। इस तरह देखते ही देखते जमजम कुएं के इर्द गिर्द बहुत से घर आबाद हो गए। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम भी अपने हमसायों से बहुत खुश थी। उन्हें हमदर्द लोगों की जरूरत थी। इस तरह उन्हें तन्हाई से भी निजात मिल गई। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बड़े हो गए। उन्होंने वहाँ नशो नुमा पाई। उनकी उम्र 10 साल हो गई। उन्होंने अरबी जुबान सीख ली, यहाँ तक कि इसमें महारत हासिल कर ली। जराहम कबीले के लोग उनसे बेहद मोहब्बत करते थे। इस मोहब्बत की वजह से उन्हें घेरे रहते थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी आपसे बहुत मोहब्बत करते थे। इसकी वजह यह भी थी कि आपको बुढ़ापे में मिले थे। उनकी पैदाइश के वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 साल से ज्यादा थी। आपको बच्चे से मिलने का बहुत शौक था। आप उनके लिए जरूरतें जिंदगी की चीजें भी ले जाते थे, उन्हें नसीहतें भी करते। एक रात सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब 3 रात तक देखा। अब यहाँ ये बात भी सुन लें कि अंबिया इकराम के ख्वाब सच्चे होते हैं, उनमें कोई शक वाली बात नहीं होती। और ये ख्वाब को देखा भी 3 रोज था। ये एक बड़ा इम्तिहान था। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम आपके अकलौते बेटे थे, बुढ़ापे में पैदा हुए थे और उनसे पहले सारी जिंदगी आपके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। इन हालात में जबकि सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बचपन की हद को पार करके जवानी में कदम रखने वाले थे, इस उम्र में पहुँच गए थे कि काम काज में अपने बूढ़े वालिदैन का हाथ बटा सके, उस वक्त उन्हें ज़िबा करने का हुक्म मिला था। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बेटे से बेहद मोहब्बत थी। इसके बावजूद आपके दिल में अल्लाह ताला की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत नहीं थी। अल्लाह ताला का हुक्म जो भी था उन्हें पूरा करना था, इसलिए आपने जरा भी खौफ महसूस ना किया और अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए तैयार हो गए। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के पास गए, उसे अल्लाह का हुक्म सुनाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में तुझे ज़िबा करते हुए देख रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है। बेटा भी आखिर किसी आम आदमी का तो बेटा था नहीं, एक नबी की औलाद थी। फौरन बोला, अब्बा जान, आपके रब ने जो हुक्म दिया है आप उसको पूरा कीजिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस वाक़ये का जिक्र इन अल्फाज में फरमाया है। और जब उसके साथ चलने फिरने के काबिल हो गया तो इब्राहीम ने उससे कहा, मेरे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है। बेटे ने जवाब दिया, अब्बा जान, जो हुक्म किया गया है उसको बजा लाएं, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी तेज की। जब उन्हें यकीन हो गया कि छुरी बिल्कुल तेज हो गई है और फौरन काटने के काबिल हो गई है तो उन्होंने सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को साथ लिया और जंगल में पहुंचे। बेटे को पेशानी के बल लटा दिया। जरा उस बाप की कफियत पर गौर करें जो अपने हाथ से बेटे को ज़िबा करने वाले थे और बेटे को औंधे मुंह लटका चुके थे। उस बेटे की कफियत पर गौर करें जो बाप के हाथों ज़िबा होने वाला था। ये है ईमान की मजबूती। औंधे मुंह शायद इसलिए लटाया कि कहीं चेहरा देखकर बाप की मोहब्बत जोश में ना आ जाए और उनके हाथ ना रुक जाएं। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने छुरी को उनकी गर्दन पर रखा और उसको चलाने लगे। इधर छुरी को अल्लाह का हुक्म हुआ, खबरदार मेरे इस्माइल की गर्दन को काटना नहीं। चुनाचा उनकी गर्दन पर खराश तक ना आई। कैसी आला शान है दोनों बाप बेटों की। बाप को अल्लाह के हुक्म से आग नहीं जलाती तो बेटे को छुरी नहीं काटती। जिस वक्त हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने फर्जंद यानी बेटे के गले पर छुरी चला रहे थे, इस वक्त हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम पुकारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हैं और नबियों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जब ये कलिमात सुने तो पुकारे, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात सुने तो यूं पुकारे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अलहम्द। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम छुरी से पूरा जोर लगाकर इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने की कोशिश कर रहे थे। उस वक्त सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान से नदा सुनी, ऐ इब्राहीम,
यकीनन तूने अपना ख्वाब सच कर दिखाया। ये आवाज सुनकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक सफेद रंग का सींगों वाला मोटी आंख वाला मेंढा खड़ा था। अल्लाह ताला ने आपको इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले वो मेंढा ज़िबा करने का हुक्म दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, हमने एक बड़ी कुर्बानी को उसके फायदे में दे दिया। अब इस कुर्बानी की याद में मुसलमान हर साल 10 जिलहज को ईद उल ज़ुहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी करते हैं। तीनों हजरात यानी हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दोहराए हुए कलिमात दोहराते हैं। यही नहीं, ये कलिमात 9 जिलहज से 13 जिलहज की असर तक हर फर्ज नमाज के बाद दोहराते हैं। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के लिए ले जा रहे थे तो शैतान जो इंसान का दुश्मन है बहुत घबराया। शैतान के घबराने की वजह ये थी कि अल्लाह ताला का हुक्म था कि अल्लाह ताला का हुक्म पूरा करना नेकी है, नेकी पर इनाम मिलता है। शैतान इंसान को अल्लाह ताला हुक्म पूरा करने और नेकी कमाने से हर सूरत रोकना चाहता है। इसलिए वो इन बाप बेटों की कुर्बानी रोकने के लिए एक बूढ़े की शक्ल में हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, तुम्हें मालूम है कि इब्राहीम तुम्हारे बेटे को कहाँ ले गए हैं? हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ, वो किसी बड़े काम से गए हैं। इस पर शैतान ने कहा, तुम्हें क्या मालूम, वो तो तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले गए हैं। हाजरा ने फौरन कहा, चल दूर हो जा, तू कोई पागल दीवाना है, कोई बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है। अब शैतान बोला, तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे शोहर को अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म मिला है। ये सुनकर हाजरा ने कहा, अगर तेरी बात दुरुस्त है तो फिर फिक्र की कौन सी बात है? इससे ज्यादा खुशकिस्मती क्या हो सकती है कि मेरे प्यारे बच्चे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया जाए। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का ये जवाब सुनकर शैतान मरदूद के मुंह पर फिटकार बरसी। वो नाकाम होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, इब्राहीम तुम्हें क्या हो गया है? नबी होकर अपने बेटे को कत्ल कर रहे हो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, दूर हो जा, ये मेरे रब का हुक्म है। अब शैतान ने कहा, ऐ इब्राहीम, अल्लाह से डरो, तुम्हें मालूम नहीं कबील ने अपने भाई हबील को कत्ल कर दिया था, तो कैसी मुसीबत में गिरफ्तार हुआ था। मुझे डर है कहीं तुम्हारा भी वही हाल ना हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म और रजामंदी से ज़िबा कर रहा हूँ। शैतान यहाँ भी मायूस हुआ। अब इसने इस्माईल अलैहिस्सलाम को भी डराने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का हुक्म पूरा कर चुके थे लेकिन अल्लाह की मर्जी ये नहीं थी कि इस्माईल अलैहिस्सलाम ज़िबा हो। अल्लाह की मर्जी तो ये थी कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का नमूना इंसानों को दिखाएं। इसलिए अल्लाह ने इनकी जान के बदले जन्नत से मेंढा भेजकर उसे ज़िबा करवाया। ये वो मेंढा था जो हबील ने कबील से सुलह होने के बाद अल्लाह के नाम पर नजर किया था। उनकी नजर कबूल होने की सूरत में उठाकर जन्नत में पहुंचा दिया गया था। हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये तक जन्नत के खाने खा रहा था। वक्त गुजरता गया और इस्माईल अलैहिस्सलाम जवान हो गए। सईदा हाजरा अलैहिस्सलाम की उम्र भी खासी हो गई, वो वफात पा गई। उनकी वफात के बाद सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने कबीले जराहम में शादी कर ली। जमजम के कुएं के इर्द गिर्द रहائش इख्तियार कर चुके थे। आपने उन्हीं से अरबी जुबान सीखी और उस पर अबूर हासिल किया। शादी के कुछ ही अरसे बाद आपके वालिद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक्त घर में नहीं थे, अलबत्ता आपकी बीवी आपके घर में थी। उन्होंने उससे सलाम किया और उससे पूछा, इस्माईल कहाँ है? उसने जवाब दिया कि वो हमारे लिए रिज़्क की तलाश में गए हैं। उन्होंने पूछा, घर के हालात कैसे हैं? उसने जवाब दिया, हम बुरे हालात से गुजर रहे हैं, घर में सख्त तंगी है। इस पर उन्होंने कहा, जब तुम्हारा खामद आए तो उसे मेरी तरफ से सलाम कहना और उससे ये भी कहना कि अपने दरवाजे की चौखट बदल ले। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए और अपनी बीवी से पूछा, क्या कोई आया था? बीवी ने जवाब दिया, हाँ, एक बुजुर्ग आए थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। बीवी ने उनका पैगाम भी दिया। पैगाम सुनकर उन्होंने कहा, वो मेरे वालिद थे, मुझे हुक्म दे गए हैं कि तुम्हें तलाक दे दूं, लिहाजा तुम अपने माँ बाप के घर चली जाओ। इसके बाद सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम ने दूसरी शादी कर ली। कुछ ही अरसे बाद सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुलाकात के लिए तशरीफ लाए। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम उस वक्त भी घर में नहीं थे। आपने उनकी बीवी से पूछा, तुम्हारा शोहर कहाँ गया? उसने बताया, वो हमारे लिए रोजी की तलाश में गए हैं। आपने पूछा, घर के हालात कैसे हैं? बीवी ने कहा, हम बेहतरीन हालात में हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपने फिर पूछा, खाने को क्या मिलता है और पीना कैसा है? उसने बताया, हमारी खुराक आमतौर पर गोश्त होती है, पीने के लिए पानी मौजूद है। आपने उनके लिए दुआ की, ऐ अल्लाह, इनके गोश्त और पानी में बरकत फरमा। और फरमाया, जब तुम्हारे खामद आए उसे मेरा सलाम कहना और उससे कहना दरवाजे की चौखट कायम रखे। ये कहकर सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुखसत हो गए। सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम घर आए तो बीवी ने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने
कहा, वो मेरे अब्बा जान थे और तुम दरवाजे की चौखट हो। वो हुक्म दे गए हैं कि तुम्हें अपनी जिंदगी का साथी बनाए रखूं। चुनाचा उन्होंने वालिद की नसीहत पर अमल किया, अपनी जिंदगी उसी बीवी के साथ गुजारते रहे। आप उसके साथ नहायत खुश थे, वो भी आपसे खुश थी। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत अच्छे शोहर थे, बात के सच्चे, तबीयत के नरम थे, आपके अखलाक खूब थे, अपने घर वालों को भी इन्हीं बातों की तालीम देते थे। कुछ मुद्दत बाद सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर मिलने आए। उस वक्त सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे तीर बना रहे थे। दोनों गले मिले। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटे अल्लाह ने मुझे एक हुक्म दिया है। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फौरन कहा, अब्बा जान, परवरदिगार ने आपको जो हुक्म दिया है इसको फौरन पूरा करें। इस पर उन्होंने पूछा, क्या तुम इस हुक्म को पूरा करने में मेरी मदद करोगे? क्यों नहीं अब्बा जान, मैं आपका हाथ बटाऊंगा। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने खुशी से कहा। तब दोनों बाप बेटे बैतुल्लाह की तमीर करने लगे। अल्लाह ने उन्हें बैतुल्लाह की तमीर का हुक्म दिया था। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर उठा कर लाते थे। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम मेमार के तौर पर दीवार बनाते थे और साथ साथ ये दुआ मांगते, ऐ हमारे रब, हमारी तरफ से ये खिदमत कबूल फरमा। बेशक तू बड़ा सुनने वाला, बड़ा जानने वाला है। दीवार बनाते बनाते इमारत कदरे ऊंची हो गई, लेकिन अभी उसे कुछ और ऊंचा करना था। ये तभी हो सकता जब सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम किसी चीज पर खड़े हो। इस गर्ज से सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने एक बड़ा सा पत्थर उठा कर लाए। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पर खड़े हो गए। इस तरह आप बुलंद हो गए। आप उस पत्थर पर खड़े तमीर फरमाते जाते, फिर खाना काबा के गिर्द घूमते भी जाते। इस तरह काबे की तमीर मुकम्मल हो गई। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दोनों पैरों के निशानात उस पत्थर पर बन गए। वो पत्थर आज भी मौजूद है। खाना काबा में जिस जगह उसको रखा गया है उस जगह को मकामे इब्राहिम कहते हैं। पहले ये पत्थर दीवारे काबा के पास ही था, फिर सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने जमाने में उसको कदरे दूर हटा दिया। उन्होंने जिस जगह उसको रखवाया आज भी वही मौजूद है। सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ऐसा इसलिए किया कि खाना काबा का तवाफ करने वालों को दिक्कत ना हो। बहरहाल फिर सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरा अस्वद को बैतुल्लाह की दीवार में नस्ब कर दिया। हजरा अस्वद बैतुल्लाह की दीवार में लगा हुआ वो पत्थर है जिससे बैतुल्लाह का तवाफ करने वाले अपने तवाफ की इब्तिदा करते हैं। उस पत्थर के बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ग्रामी है, हजरा अस्वद जब जन्नत से उतारा गया तो ये बर्फ से भी ज्यादा सफेद था, लेकिन औलादे आदम के गुनाहों ने उसे स्याह कर दिया। जो उम्रा करने वाले दौरान तवाफ हजरे अस्वद को बोसा देते हैं। अगर बोसा देना मुमकिन ना हो तो उसको हाथ से छूते हैं, फिर उसकी तरफ इशारा करके अपना तवाफ की इब्तिदा करते हैं और हर चक्कर में इसी तरह करते हैं। ये इतना मुअज़्ज़ज़ पत्थर है कि अल्लाह ताला क़यामत के रोज को 2 आंखें और ज़ुबान अता फरमाएगा, और जिसने भी उसे सच्चे दिल से बोसा दिया, हाथ लगाया होगा, ये उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में बतौर गवाह पेश होगा। जब काबे की तमीर मुकम्मल हो गई तो दोनों ने अल्लाह की तारीफ बयान की और उसका शुक्र अदा किया कि उसने उन्हें अपने घर तमीर करने की तौफीक अता फरमाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की तमीर से फारग हुए तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, अब मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अब आप हज का ऐलान करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, मेरी कमजोर आवाज कहाँ तक पहुँचेगी, कितने लोग सुनेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया, हमारे हुक्म को बजा लाना आपका काम, लोगों तक आपकी आवाज पहुँचाना हमारा काम। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, और लोगों में हज की मनादी कर दे, लोग तेरे पास पैदल आएंगे और दुबले पतले ऊँटों पर भी। दूर दराज की तमाम राहों से अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अभी कबीस पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और हज का ऐलान किया। हदीस में है, आपने इस आवाज पर लब्बैक कहा, चाहे वो पैदा हो चुका था या अभी पैदा नहीं हुआ था और आलमे रूह में था, वो हज जरूर करता। जिसने 2 मरतबा लब्बैक कहा वो 2 मरतबा हज करेगा। मतलब ये कि जिसने जितनी मरतबा भी लब्बैक कहा वो इतनी ही मरतबा हज करेगा। अल्लाह ताला ने आपके इस ऐलान को वक्त के साथ साथ दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। मुसलमान लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं, खाना काबा की तरफ आते हैं, हज करते हैं और उनकी तादाद हर साल पहले की निस्बत बढ़ती जाती है। कुरान करीम में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया गया है, किताब में इस्माइल अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए क्योंकि वो वादे के सच्चे नबी और रसूल थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के वादे के पक्के होने का सबूत इस वाक़ये से मिलता है कि एक मरतबा एक शख्स ने आप अलैहिस्सलाम ने वादा किया, जब तक तुम आओगे मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। वो शख्स चला गया। वो 3 दिन बाद वापस आया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम उसी जगह उसका इंतजार कर रहे थे। मक्का के लोग हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सादक कहा करते थे और इसी नाम से आप अलैहिस्सलाम मशहूर थे। जब तमीर खाना काबा मुकम्मल हो गई तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आपको खाना काबा का निगरान बनाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम खाना काबा की सफाई करते, वहाँ
امامت کرواتے اور زیارت کے لیے آنے والے زائرین کی خدمت کرتے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال تھی اور آپ نے اپنی وفات تک یہ خدمت سر انجام دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے 137 سال کی عمر میں وفات پائی، گویا آپ علیہ السلام نے 107 سال تک خانہ کعبہ کی دیکھ بھال اور نگرانی کی۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ ان 12 بیٹوں کی نسل سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے اپنی قوم کے سردار تھے، ایک ایک نے اپنی الگ الگ بستی بنائی۔ ان سب کی اولاد اس قدر بڑی کہ حجاز سے نکل کر یمن، شام اور عراق میں پھیل گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وفات کے بعد ان کی والدہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کعبۃ اللہ کے نزدیک صحن میں دفن کیا گیا۔